Yeah, hello viewers and the students. Those who are interested to gain knowledge in tenses, you can get the revision of all the tenses here. Okay, today onwards, revision of all the tenses are there. So if you follow these, those who have lost, those who have not yet joined, they can join the classes. Now onwards, you can observe you can watch the videos also. So in this, now our revision of all the tenses are there from today onwards. Okay, the first of all we have to understand, and those who have not yet subscribed my channel, I would request them to subscribe the channel. Okay, the channel name, as you know, those who have not yet subscribed, they can subscribe the channel KCC English Education, and YouTube channel is there, and gradually every day gradually you will be getting the videos related to the revision of all the tenses. How can we use the tenses? If you intend to speak good English, okay, then definitely you need to follow grammar. You have to use grammar. If your grammar is weak, you are not using the appropriate grammar in your English, then definitely that will not be the right expressions. So in order to express in a right way without grammar, it is not possible. So that's why first of all you need to follow today onwards. The first tense is our सिंपल प्रेजेंट टेंस. एज यू नो, विदाउट टेंसेस वी कैनॉट एक्सप्रेस आवर व्यूज. हम हमारी बिना टेंस में कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं. सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. द फर्स्ट थिंग इज आवर सिंपल प्रेजेंट टेंस. सी रिवाइज्ड, दिस इज प्रेजेंट टेंस, simple present. This is the example of all these are the example of simple present tense. Okay, the now question comes in present. Little confusion is there. Confusion is what? In present tense we are getting two types of sentences, to be form and action form. Commonly we don't give much preference to be form. So many people, they don't know what is to be form. Okay, action form you know, that is simple present tense action form sentences. Okay, any work or action which is completed in present time, जो काम present time में होता है, that is called present tense. तो present, simple present tense. Okay, that is simple present tense. What is the identity in Hindi? हिंदी में इसका पहचान क्या है? ता ती ते, क्रिया के साथ क्या होता है? ता ती ते. Okay, that is your action form. So in action form sentences, for example, this is your main verb. In action form sentence, your main verbs are play, sing, dance, read, write. All these are the action form words. हिंदी में इस वर्ड को हम टू बी एक्शन वर्ड्स कहते हैं. हिंदी, इन हिंदी द नेम इज योर एक्शन वर्ड्स. मीन्स तातीते, क्रिया के साथ क्या यूज होता है? तातीते. कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये सारे सेंस आता है. रीड, पढ़ना, ये तातीते में आता है. मैं पढ़ता हूँ. पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना. ना टर्म कम्स इन हिंदी. ना मतलब नो नहीं है. लिखना, ओके, पढ़ना, लर्न करना, खाना, पीना, whatever the work we do in Hindi action, that is called the verbs, finite verb. They are called finite verbs. So these are called finite verbs. These finite verbs are of how many forms? A finite verb consists of कितने फॉर्म होते हैं? How many forms? Forms of a finite verbs कितने फॉर्म होते हैं? 5 forms. Remember 5 forms. Go, went, gone, goes, going. Write, wrote, written, writes, writing. Sing, sang, sung, sing, singing. Do, did, done, does, doing. ये जो 5 forms of verbs we use in 12 tenses. Okay, we use these 5 forms in कितने tense में? 12 tense में. Okay, simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous. फिर हम simple past, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Thereafter simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So 12 tenses are there. All these 5 forms are used in 12 tenses. जैसे go, I go to school every day, I go to office every day. Okay, I go, which tense? Simple present tense. Now I am going, present continuous. Okay, my brother, I have gone, we cannot use I have gone.
बिकॉज आप तो यहीं पे हो, आप आई हैव गॉन कैसे बोलोगे? कि माई ब्रदर हैज़ गॉन बोल सकते हो कि वो अभी नहीं आई, वो माई ब्रदर हैज़ गॉन। तो एंड ही हैज़ गॉन, ही हैज़ बीन गोइंग, सो ये ऑल द प्रेजेंट टेंसेस। फिर पास्ट टेंस में जाओ, yesterday I went, okay, I was going, I had gone, I had gone, I में लगा सकता हूँ क्योंकि अभी तो अभी यहाँ तो yesterday की बात है, past tense, I had gone, I had been doing a job for 3 years, मैं 3 साल से एक जॉब कर रहा था, 3 साल से, that is past perfect continuous. Similarly future में जाओ, all the 4 future tenses you are using. Pardon? Yeah, listen. Now I am telling you कि these are your action forms. But what is to be form then? To be form में क्या है? In to be form you see your identity. What is your identity? Observe this. Here it is written to be form sentences. Follow the sentence first, so you will get to know. Now I am telling the identity of Rohit. Who is Rohit? तो here Rohit is a cricketer. रोहित इज ए क्रिकेट प्लेयर और रोहित इज ए क्रिकेटर। ये जो इज है ये मेन वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब एम इज आर होता है प्रेजेंट टू बी फॉर्म में। जो वर्ब्स होते हैं वो एम इज आर। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, ओके, जो भी अपना अपना परिचय, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम, आप बिजनेस करते हो तो आई एम ए बिजनेसमैन, दैट इज योर आइडेंटिटी। ठीक है, दैट इज योर आइडेंटिटी। तो एम होता है आई के साथ, केवल ओनली एम वी यूज विथ आई फॉर आइडेंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू, रिमेंबर। और इज होता है ही शी इट। जैसे रोहित है तो ही शी इट में काउंट होता है, वो सिंगुलर है। तो रोहित इज, देखो यहाँ पे इज मेन वर्ब है। रोहित इज ए क्रिकेट प्लेयर। रोहित है कौन? वो क्रिकेट प्लेयर है। ओके, तो रोहित इज ए क्रिकेट प्लेयर। हम पॉजिटिव में चलेंगे। रोहित इज ए क्रिकेट प्लेयर, रोहित इज ए क्रिकेटर भी बोलो, रोहित इज ए क्रिकेटर। आप एक्शन फॉर्म में आ जाओ। रोहित करता क्या है? क्रिकेट प्लेयर तो ठीक है, वो क्रिकेट खेलता है। ओके, आइडेंटिटी जो क्रिकेटर है तो क्रिकेट खेलेगा ही। आई एम ए टीचर, ये मेरा आइडेंटिटी है, तो मैं करता क्या हूँ? आई टीच, इजंट इट? सो रोहित इज ए क्रिकेटर। रोहित plays cricket. This is called action. Understood? Plays s क्यों लगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस एस लगता है, ही शी इट सब्जेक्ट हो तो नाउ रोहित इज सब्जेक्ट है। रोहित सब्जेक्ट है। एस वी ओ इंग्लिश में क्या होता है? एस वी ओ यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो सब्जेक्ट क्या है? रोहित प्लेज, एम वी, एम मतलब सॉरी एस वी ओ, एस मतलब सब्जेक्ट, वर्ब इज प्ले, जोड़ दिया हमने एस। रोहित प्लेज, रोहित प्लेज व्हाट? इफ वी पुट ए क्वेश्चन मार्क व्हाट, तो क्या होगा? क्या क्या खेलता है? तो क्रिकेट, क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। इफ वी पुट ए क्वेश्चन मार्क व्हाट इन फ्रंट ऑफ फाइनाइट वर्ब के सामने अगर व्हाट क्वेश्चन पुट करते हैं और टू हुम, दोनों ही WS फैमिली से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। टू हुम, तो यहाँ पे टू हुम का कोई आंसर नहीं है, सिर्फ व्हाट का आंसर है। रोहित प्लेज व्हाट? क्रिकेट। रोहित क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। रोहित प्लेज क्रिकेट। ओके, तो ये रोहित एक्शन है। रोहित क्या करता है? रोहित प्लेज क्रिकेट। इस सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो व्हाट विल बी देयर? व्हाट इज द नेगेटिव सेंटेंस? रोहित डज नॉट प्ले। देखो यहाँ पे रोहित डज नॉट प्ले फुटबॉल। वो फुटबॉल नहीं खेलता, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो रोहित डजंट प्ले फुटबॉल। तो डजंट के बाद यहाँ पे एस हट गया, प्ले से ये प्ले हो गया, डजंट प्ले। ठीक है, ये है एक्शन फॉर्म सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव। अच्छा, टू बी फॉर्म नेगेटिव क्या होगा? रोहित इज नॉट ए फुटबॉलर। रोहित फुटबॉलर नहीं है, वो क्रिकेटर है।
तो नेगेटिव में रोहित इज नॉट लगा, यहाँ पे डज नॉट नहीं हुआ, इज नॉट। अंडरस्टूड? रोहित इज नॉट ए फुटबॉलर। रोहित क्या है फिर? रोहित क्या है? रोहित इज ए क्रिकेटर। माई फादर इज ए बिजनेसमैन, ही इज नॉट ए सर्विसमैन। माई फादर इज ए बिजनेसमैन, ये मेरा पापा फादर का आइडेंटिटी है। नेगेटिव में भी बोलो, ही इज नॉट ए बिजनेसमैन, वो सर्विसमैन, वो सर्विसमैन नहीं है, वो बिजनेसमैन है। पहचान। तो सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू बी फॉर्म को। ओके, तो पॉजिटिव सेंटेंस, लेट्स जस्ट ए मोमेंट सी इन टू बी फॉर्म 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। वो क्या क्या है? पहचान में 6 टाइप्स ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव क्या है? रोहित इज नॉट ए फुटबॉलर, ही इज ए क्रिकेटर। इज ही, डज नहीं होगा यहाँ पे। इज ही ए क्रिकेटर और इज ही ए फुटबॉलर, क्या वो फुटबॉलर है? तो इज, गलती से अब ये मत सोचना कि इज हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, इज मेन वर्ब है, क्योंकि आइडेंटिटी होता है। इज रोहित अ फुटबॉलर? आपका जवाब में क्या है? यस, रोहित इज ए। देखो पहले में आपका आंसर आ गया। या तो पॉजिटिव में होगा तो नेगेटिव में होगा। नो, ही इज नॉट ए फुटबॉलर, ही इज ए क्रिकेटर। बस। तो इन दिस वे 6 sentences आर देयर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WS पॉजिटिव, WS नेगेटिव। हाउ इज रोहित ए क्रिकेटर? वो क्रिकेटर कैसे है वो? व्हाई इज नॉट ही ए क्रिकेटर? व्हाई इज नॉट ही ए फुटबॉलर? वो फुटबॉलर क्यों नहीं है? ओके, आप बोल रहे हो माई फादर इज ए बिजनेसमैन। व्हाई इज ही ए बिजनेसमैन? व्हाई इज ही नॉट ए बिजनेसमैन? वो बिजनेसमैन क्यों नहीं है? ओके, तो इसी तरह क्वेश्चन हम हो तो आप गलती ये नहीं वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर कॉल्ड टू बी फॉर्म सेंटेंसेस, यानी पहचान, आइडेंटिटी। सिमिलरली आइडेंटिटी ऑफ ए प्लेस, नोएडा इज एन इंडस्ट्रियल सिटी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब बोलते हो कि वेयर डू यू लिव? आई लिव इन दिल्ली। आइडेंटिटी बोलो, दिल्ली के बारे में समथिंग। तो व्हेनेवर वी वांट टू स्टार्ट एनी आइडेंटिटी ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग, we use to be form sentence at first, knowingly or unknowingly you do. Okay, unknownly करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। If I tell please describe Noida, suppose, तो आपको बोलना पड़ेगा नोएडा क्या है। तो क्या, what is the first sentence? नोएडा is an industrial city. तो कोई एक्शन हो रहा है क्या? This is the identity of नोएडा। हुआ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स पहचान, नोएडा का पहचान दे रहे हो आप। सिमिलरली आपका गांव में, गांव का आइडेंटिटी। ओके, प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट, सबका आइडेंटिटी के लिए टू बी फॉर्म सेंटेंस यूज होता है। दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए मार्कर, इसका पहचान है, पेन नहीं है। दिस इज ए मार्कर इज मेन वर्ब है, गलती से हेल्पिंग वर्ब मत समझा इसको, ठीक है। दिस इज ए मेन वर्ब, दिस इज ए मार्कर, दिस इज नॉट ए पेन, दिस इज नॉट ए पेन। इज इट ए पेन? नो नो, इट इज नॉट ए पेन, इट इज ए मार्कर। ओके, इन दिस वे आइडेंटिटी हमें पहचानना होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अंदाजा में क्वेश्चन बनाओगे, गलती होने का बहुत चांसेस है। दैट्स वाई नोइंगली यू कैन मेक द पुट द क्वेश्चंस टू एनीबडी, कि मैं किसी के बारे में जानना चाहता हूँ। इनिशियली इट हैपन्स व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, आप एक दूसरे से बातें करोगे। ओके, यू वांट टू नो रिगार्डिंग व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर। ओके, नाउ यू विल हैव टू टेल माय फादर इज ए बिजनेसमैन, माय फादर इज ए सर्विसमैन, मीन्स यू आर गिविंग द आइडेंटिटी ऑफ योर फादर। ओके, अंडरस्टूड दिस? नाउ हियर ऑल्सो यू सी पॉजिटिव, नेगेटिव इन एक्शन फॉर्म। एज टू बी फॉर्म में आपने देखा सभी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ऑल कम्स सिमिलरली इन एक्शन फॉर्म। रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित डजंट प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इज नहीं, यहाँ पे आ गया डज, क्योंकि एक्शन है। एक्शन फॉर्म में क्रिया दिखाता है, यहाँ पे गो, प्ले, सिंग, डांस, राइट, रीड, ये सारी क्रिया है, तो यहाँ पे डू डज लगता है। तो डज रोहित प्ले क्रिकेट? क्या रोहित क्रिकेट खेलता है? तो इसका जवाब कहाँ पे है? यस और नो में है।
यस, आप ही लगाना है यहाँ पे, नाउन को रिप्लेस करो रोहित को, यस ही प्लेज क्रिकेट। इफ आंसर इज नो, नो ही डजंट प्ले, इज नॉट नहीं, डजंट, नो ही डजंट प्ले क्रिकेट। अगर हाँ है या ना है वो आप यू नो एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। डजंट रोहित, देखो डजंट रोहित प्ले क्रिकेट, क्या रोहित क्रिकेट नहीं खेलता है? तो इफ द आंसर इज यस, देन यू हैव टू योर फोकस शुड बी मोर इन यस, यस ही प्लेज। अगर नहीं है तो नो ही डजंट प्ले। ओके, ये सेम आंसर। डज रोहित प्ले क्रिकेट, आप जानना चाहते हो क्या रोहित क्रिकेट खेलता है? यस ही प्लेज क्रिकेट। एक तो इफ द आंसर इज नो, तो नो ही डजंट प्ले क्रिकेट। लेकिन मुझे यकीन है कि वो क्रिकेट खेलता है, लेकिन आप मना कर रहे हो। ओके, देन आई एम क्यूरियस टू नो कि मैं जानता हूं कि वो खेलता है, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं खेलता है, तो डजंट ही प्ले क्रिकेट? यस ही प्लेज क्रिकेट। यस एंड नो में स्ट्रेस ज़्यादा आता है। सपोज यू लिव इन दिल्ली, यू डोंट लिव इन नोएडा, बट you told someone that yes I live in Delhi, but you live in Noida, तो don't you live in Delhi? अगर कहीं पे डाउट होता है तो डाउट क्लैरिटी के लिए हम नेगेटिव इंटरोगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आर्गुमेंट में बहुत होता है, या तुमने ऐसे नहीं बोला, डिडंट यू टेल लाइक दैट, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने बोला तो आप मना कर रहे हो। तो दैट्स वाई आई आस्क द क्वेश्चन विथ नेगेटिव इंटरोगेटिव। प्रैक्टिस करोगे तो ग्रेजुअली यू विल कम टू नो ऑल दिस। ओके, नाउ सी द WS फैमिली। WS फैमिली क्या है? कब, कहाँ, कैसे, ये कोई भी एनी WS फैमिली में कम। व्हेन डज रोहित प्ले क्रिकेट? व्हेन डज रोहित प्ले क्रिकेट? तो आप क्या लिखोगे? सेम यही जवाब इसी में मिल जाएगा। ही लगाना है यहाँ पे, ही प्लेज क्रिकेट यहीं पे ऐड हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज पार्ट। ही प्लेज क्रिकेट, टाइम बताना होगा, इन द मॉर्निंग, नहीं तो इन द इवनिंग, क्योंकि क्वेश्चन है व्हेन से। व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट? ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। अगर क्वेश्चन यहाँ पे व्हेयर होता, WS फैमिली में कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। व्हेयर डज ही प्ले, वो कहाँ खेलता है? ही प्लेज इन द स्टेडियम, ही प्लेज इन द स्टेडियम। व्हेयर, चेंज करो व्हेयर को, विथ हुम, किसके साथ खेलते हैं? विथ हुम डज ही प्ले, किसके साथ खेलते हैं? तो ही प्लेज क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। ओके, WS फैमिली चेंज करते रहो और ये इसी यहीं पे ऐड होते जाएगा उस सभी का नंबर। ओके, सो इन दिस वे इफ यू क्वेश्चन इज अवेलेबल हेयर, आंसर्स इज हेयर ओनली। हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, कब, कहाँ, कैसे, सभी का आंसर यहीं पे जोड़ो, क्योंकि यही 6-7 सेंटेंसेस आर देयर ओवरऑल। देखो 1 by 1 व्हेन हो गया। तब नाउ नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्यों नहीं? व्हाई डजंट रोहित प्ले फुटबॉल? वो फुटबॉल क्यों नहीं खेलता है? क्रिकेट क्यों खेलता है? ही प्लेज, यस ही प्लेज क्रिकेट बिकॉज ही लाइक्स इट, बिकॉज इट इज हिज प्रोफेशन। Okay, he is a cricketer, so that's why he plays cricket. Understood? So why doesn't? क्यों नहीं? Why don't you come to the class daily? आप क्यों नहीं आते हो? तो आपको एक रीजन शो करना होता है। I don't come because, यहाँ पे I don't come to the class because I don't have time in the morning, in the evening. I come from the office too late. Reason? Okay, इसी तरह पॉजिटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये सब होता है। वन मोर सेंटेंस इन एक्शन फॉर्म, दैट इज डज रोहित डज प्ले क्रिकेट, नॉट ऑलवेज व्हेन सस्पेक्शन इज देयर। ओके, रोहित प्लेज क्रिकेट, ये तो है, ये है रोहित प्लेज क्रिकेट, तो डज क्यों लगाएंगे? व्हाई? When, in which situation we can use रोहित does play? जरूर सेंस कम्स, वो जरूर क्रिकेट खेलता है। ठीक है, जरूर, जहाँ पे जरूर सेंस देना है। सपोज आई एम टेलिंग, यू आर टेलिंग टू योर फ्रेंड्स, यू नो आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ।
मैं हमेशा सच बोलता हूँ। आपने आपके दोस्तों को बोला कि आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ, और योर फ्रेंड्स दे डोंट बिलीव इट, वो मुँह बनाते यार आप फिर सच बोलते हो हमेशा, ये नहीं। सो सीइंग देयर फेसेस यू रियलाइज दैट दे डिडंट बिलीव यू, है ना। आपको पता चला कि नहीं, वो मेरे बात यकीन नहीं किया। तो आई डू टेल द ट्रूथ। पहले क्या बोला था? आई टेल द ट्रूथ बोला था, फ्रेंड्स ने बिलीव नहीं किया, तो यकीन दिलाने के लिए आपने क्या बोला? आई डू टेल द ट्रूथ, मैं जरूर सच बोलता हूँ। तो ये जो सेंसेशन जरूर का सेंस दे रहे हो, इसीलिए हमने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस और इनडेफिनेट जिसे हम कहते हैं इनडेफिनाइट, सो इनडेफिनेट टेंस को हम डेफिनेट बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज लगा के। आप बिलीव नहीं कर रहे हो कि रोहित क्रिकेट खेलता है, सपोज आई एम टेलिंग वन थिंग, you know that your brother doesn't smoke, okay, you are sure, and I saw him smoking, मैंने बोला कि वो स्मोक करता है, he smokes, no I don't believe, he does it, he does smoke, he does smoke, वो जरूर स्मोक करता है। तो यहाँ पे यकीन दिला रहा हूँ मैं कि सर्टेन है, ये निश्चित तौर पर वो करता है, तब आप बिलीव करोगे। इन दिस वे, नॉट ऑलवेज, वी डोंट यूज दिस ऑलवेज, रिमेंबर, हम हमेशा यूज नहीं करते हैं। व्हेरेवर देयर इज ए सेंस ऑफ सस्पेक्शन, डाउट है, उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ पे? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, ये तीनों टेंस में हम सर्टेन सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल पास्ट में डिड, I did go there, I did do it, did you do it? Yeah, I did it, बिलीव नहीं किया, yeah I did do, मैंने जरूर किया है ये काम। Did you learn your lesson? Yes sir I learned, मुझे यकीन नहीं हुआ, सर I did learn, मैंने जरूर लर्न किया। आप मुझे सर्टेनिटी शो कर रहे हो। तो इन दिस वे व्हेनेवर देयर इज अ सर्टेनिटी, रिमेंबर यू हैव टू यूज दिस। तो ऑल दिस कम्स इन एडवांस्ड पार्ट। इंग्लिश में बेसिक में अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पाता है, मैंने इससे पहले भी मैंने देखा है, हो नहीं पाता है। ग्रेजुअली यू विल कम टू नो कि हाउ व्हाई शुड यू यूज दिस सर्टेन सेंटेंसेस, ऑलवेज इट इज नॉट यूज्ड। सो एज आई वाज टेलिंग, दीज आर द यूजेस ऑफ एक्शन फॉर्म। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में 6-7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, एंड इन टू बी फॉर्म वी हैव 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। एक्शन फॉर्म में 7 सेंटेंसेस आर देयर। यस प्लीज, यस। सी एज you are observing 2 types of sentences, to be form and action form. Okay, in to be form we get to know the identity, पहचान। One important thing is that in to be form sentences we use the adjectives. In to be form sentences we use the adjectives. In action form sentences we use the adverbs. So what is adjective, what is adverb? कॉमनली यू शुड नो दिस। जैसे एडजेक्टिव क्या है? द क्वालिटीज ऑफ द नाउन्स, क्वालिटी ऑफ द नाउन्स। तो रोहित क्या है? रोहित एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नेमिंग पर्सन, उनका क्वालिटी है, जरूर क्वालिटी होगा। रोहित इज ए गुड क्रिकेटर। गुड क्या है? एडजेक्टिव। तो कहाँ पे यूज हुआ? वही क्रिकेटर के सामने यूज हो गया गुड। रोहित इज ए गुड क्रिकेटर। ओके, रोहित इज ए गुड क्रिकेटर, अच्छा क्रिकेटर है। वो खेलता कैसे है? ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, वो है एक्शन। एक्शन का क्वालिटी, कैसे खेलता है, कैसे प्लेयर वो नहीं है, कैसे प्लेयर, गुड प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। खेलता कैसे है? बहुत ही अच्छा खेलता है, वेल। ही प्लेस क्रिकेट, गुड नहीं, ही प्लेस क्रिकेट वेल। वेल इज एडवर्ब, गुड इज एडजेक्टिव। रिमेंबर, गुड एंड वेल में अंतर क्या है? वेल मतलब अच्छा, गुड मतलब भी अच्छा, लेकिन वेल इज एडवर्ब, ओके, एंड गुड इज एडजेक्टिव। रोहित इज ए गुड क्रिकेटर, he plays cricket very well, very good नहीं, very well।
तो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन. सिमिलरली नोएडा इज एन इंडस्ट्रियल सिटी. तो एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे? इंडस्ट्रियल. कैसे सिटी है? कॉमन सिटी नहीं है, ऐसे सिटी नहीं है, इंडस्ट्रियल सिटी है. ओके. दिल्ली इज द न्यू दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया. तो न्यू दिल्ली का आइडेंटिटी क्या है? कैपिटल सिटी. कैपिटल सिटी इज योर एडजेक्टिव. दिल्ली का आइडेंटिटी है, पहचान है ये. एनी पर्सन, एनी थिंग, एनी ऑब्जेक्ट, वी हैव द आइडेंटिटी, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. कहाँ पे यूज होता है? टू बी फॉर्म में. एक्शन फॉर्म में हम उसका. ओके. सो टेक्निक्स आर देयर, यू कैन गो थ्रू माई अदर वीडियोज वेयर एडजेक्टिव्स आर कन्वर्टेड इनटू एडवर्ब्स. ओके. एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेहा इज ए स्वीट गर्ल. शी स्पीक्स स्वीटली. शी सिंग्स सॉन्ग स्वीटली. ओके. लता इज ए स्वीट सिंगर. कैसे सिंगर है? स्वीट. शी सिंग्स स्वीटली. तो एल फॉर्म सफिक्स लगा के एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में बदल सकते हैं. सो मेनी एडजेक्टिव्स आर देयर. क्विक, क्विकली. पोलाइट, पोलाइटली. ओके. शी इज़ ए पोलाइट गर्ल. शी स्पीक्स. शी इज़ कैसे लड़की है? पोलाइट है, वो है एडजेक्टिव. ओके. लता इज़ ए पोलाइट गर्ल. शी स्पीक्स हाउ, बोलती कैसे है? पोलाइटली. तो पोलाइटली इज योर एडवर्ब. सो ये भी आपको सीखना पड़ेगा कि एडजेक्टिव्स, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स, हाउ कैन एडजेक्टिव्स बी कन्वर्टेड इनटू एडवर्ब्स. LOI सफिक्स कुछ भी नहीं है, एडजेक्टिव को हमने LOI लगा के एडवर्ब में बदल देते हैं. ओके. सो इन दिस वे these things will be there. Next we are proceeding to present continuous. Okay, just follow present continuous.